السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج بھی آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی ولید نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ولید کہتے ہیں کہ ہم لوگ فیصل آباد میں رہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ولید کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا گھر جس طرف ہے وہاں پر ایک بہت پرانا ریلوے اسٹیشن تھا، یعنی ہم لوگوں کا گھر، ہم لوگوں کی جو آبادی تھی گھروں کی، وہ اس ریلوے اسٹیشن سے تھوڑی ہی دور تھی۔ ہمارے گھروں کے آگے سے ہی وہ ریلوے ٹریکس گزر کے جاتے تھے، ان سے دور ہم لوگوں کے گھروں کی آبادی تھی، یعنی ہم لوگ اپنے گھر سے باہر جب نکلتے تھے تو وہ ریلوے ٹریکس بالکل ہم لوگوں کے سامنے ہوتے تھے، لیکن سینٹر میں ایک گراؤنڈ بھی ہوتا تھا۔ اس ریلوے اسٹیشن کو بند ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ جب نئے اسٹیشن بنے تو یہاں سے ریلوے ٹریکس ہٹا لیے گئے تھے۔ اب ریلوے ٹریکس کے دونوں سائڈوں پر آبادیاں تھیں، لیکن بہت زیادہ آبادیاں نہیں تھیں۔ کچھ عرصے سے ہم لوگوں کو رات کے ٹائم ہم لوگوں کے جو ریلوے ٹریکس تھے وہاں سے اکثر لوگوں نے یہ شکایتیں کی کہ ہم لوگ یہاں پر کسی کو دیکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان ریلوے ٹریکس کے اوپر رات کے ٹائم کوئی بھاگتا دوڑتا نظر آتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون ہے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے تو کافی لوگوں نے ہم لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی کہ اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، اس کا چہرہ بہت بھیانک ہوتا ہے۔ 2 سے 3 بار لوگوں نے اس مخلوق کو دیکھا، مگر وہ کبھی کسی انسان کے روپ میں ہوتی ہے اور کبھی کسی جانور کے روپ میں، مگر یہاں پر واضح ان ٹریکس کے اوپر وہ چیز چلتی پھرتی بھاگتی ہے رات کے ٹائم۔ ہم لوگوں نے واچ مین کو بھی یہی بات کہہ دی کہ جب تم اس طرف پہرا دینے آتے ہو تو ذرا دیکھ کر آیا کرو، کیونکہ ایسی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں۔ کافی دن گزر گئے، سردیاں ہی تھیں، دسمبر کا موسم تھا۔ کافی عرصے سے واچ مین کی جو ایک وسل ہوتی ہے اس کی آواز نہیں آتی تھی۔ ہم لوگ بڑے حیران تھے کہ ہم لوگ ہر مہینے جو واچ مین ہم لوگوں سے اپنا لے کر جاتا ہے، فی اپنی لے کر جاتا ہے پہرا دینے کی، لیکن اس کی وسل کبھی بھی نہیں آئی۔ ایک دفعہ یوں ہی دن کے ٹائم ہم لوگ باہر بیٹھے تھے سارے دوست، تو جو لڑکا ادھر رات کے ٹائم پہرا دیتا تھا علاقے میں، وہ ہم لوگوں کو نظر آیا۔ ہم نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تم اب ہم لوگوں کے ایریے کا پہرا کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے کافی عرصے سے اس جگہ کا پہرا دینا چھوڑ دیا ہے، تقریباً 1-1.5 ماہ سے، اور نہ ہی آگے میں فردر اس سائڈ پر پہرا دینے آؤں گا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ جب آپ لوگوں نے مجھے بتایا تھا، علاقے کے اور لوگوں نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہاں پر رات کے ٹائم اکثر لوگوں نے کوئی چیز دیکھی ہے، اسی طرح سے میں بھی رات کے ٹائم پہرا ہی دے رہا تھا۔ 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی میں آپ لوگوں کے اس ایریے کی طرف آیا ہوں تو میں نے ریلوے ٹریکس کے اوپر کسی کو بیٹھے دیکھا۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں پوچھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی میں اس چیز کے پاس جانے لگا، وہ چیز اٹھ کے مجھ سے آگے بھاگنے لگ گئی۔ جب وہ بھاگی تو بھاگتے ساتھ اس نے بہت خوفناک آوازیں نکالنی شروع کر دی، اور تھوڑی ہی دور جا کر وہ چیز غائب ہوگی میری آنکھوں کے سامنے۔ جب میں نے اس چیز کو غائب ہوتے دیکھا تو میں بہت زیادہ ڈر گیا اور وہاں سے فوراً بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس سائڈ پر نہیں آؤں گا، یہ جگہ بہت خوفناک ہے۔ پرانے اسٹیشن کی طرف وہ چیز میں نے خود جاتی دیکھی ہے۔ اب ہم لوگ بھی تھوڑے پریشان ہو گئے کہ یہ بھی جواب دے گیا ہے۔ پھر ہم دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ خود آج کی رات یہاں پر بیٹھ کے دیکھیں گے کہ آخر وہ چیز کیا ہے جو لوگوں کو ڈراتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ تھا کہ اسٹیشن والا جو ایریا ہے وہ بالکل ویران اور خالی ہے۔ اسٹیشن والی طرف کوئی آبادی نہیں تھی، وہ جگہ بالکل ویران تھی، آبادیاں بالکل ان ٹریکس کی طرف تھی، اس طرف بالکل جنگل تھے، وہ جگہ ویران اور خالی تھی۔ ہمیں یہ تھا کہ وہاں پر کوئی چھپ کر نہ بیٹھا ہو اور کسی کو کوئی تنگ نہ کر رہا ہو۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگ خود ایک دفعہ اس جگہ پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ ہم محلے کے ہی لڑکے تھے، 7-8 ہم
लड़के थे, ठंड भी थी। हम लोगों ने यही डिसाइड किया जो स्टेशन का पुराना बरामदा है वहाँ पर हम लोग रात को बैठेंगे। हम लोगों ने आग जलाने का भी बंदोबस्त किया और एक बहुत बड़े से बर्तन में हम लोगों ने लकड़ियाँ जमा करके आग जलाई और ख़ुद सारे उसकी चारों तरफ बैठ गए। 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। हमें ठंड भी लग रही थी और दिल में डर भी था कि पता नहीं कोई चीज़ हम लोगों के सामने आ ही ना जाए। हम लोग आग सेक रहे थे, साथ बातें कर रहे थे। बिल्कुल जो पीछे जंगलात और वीराने थे वहाँ से हम लोगों को बोलने की आवाज़ें आने लग गई, जैसे कोई ऊंचा ऊंचा बोल रहा है, किसी का नाम ले रहा है, मगर वो नाम किसका था कोई समझ नहीं आ रही थी। पहले ऐसा लग रहा था कि किसी आदमी की आवाज़ें हैं, किसी मर्द की आवाज़ें हैं, वो ऊंची ऊंची आवाज़ में किसी को पुकार रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर किसी औरत की आवाज़ें आने लग गई। हम लोग काफ़ी देर उधर पलट कर देखते रहे, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे, हम लोगों को बिल्कुल जो स्टेशन का जिस बरामदे के आगे हम बैठे थे उस कमरे वाली तरफ से पायलों की छन छन की आवाज़ आने लग गई। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये पायलों की छन छन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। हम लोगों में से एक दो लड़के उठे, मोबाइल की टॉर्च ऑन की, आगे झांक कर देखा, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वो जो पायलों की आवाज़ थी इस तरह से आती थी, कभी भागकर जैसे हमारी तरफ आ रही है, कभी भागकर उन वीरानों की तरफ जा रही है। अब हम लोग काफ़ी डर गए थे। टाइम गुजरता जा रहा था, 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो गया। शदीद सर्दी और धुंध थी। आग हम लोगों ने जलाई हुई थी, आग सेक रहे थे हम लोग। हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और यही कहा कि डरना नहीं और भागना भी नहीं है, देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जिस तरफ हम लोगों के घरों के आगे से वो ट्रैक्स गुजरते थे, रेलवे ट्रैक्स, उनके ऊपर से 2 लोग चलते हुए आ रहे हैं। दूर से समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन है। ऐसा लग रहा था 2 लोग चलते हुए आ रहे हैं। जिस वक्त वो स्टेशन की उस तरफ आए जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग उनको दूर से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था एक मर्द है और एक औरत है। बिल्कुल वो आए हैं, स्टेशन वाले बरामदे तक आए हैं। हम लोग देख रहे हैं उनको अपनी आंखों से। जैसे ही हम लोग उठे हैं कि हम लोग जाकर देखते हैं कि इतनी रात को यहाँ से कौन गुजर रहा है, हम लोगों के देखते देखते ही वो गायब हो गए। अब हम लोगों का तो खौफ का कोई हिसाब ही नहीं रह गया था कि हम लोग क्या करें। पसीने हम लोगों के छूट के इतनी शदीद ठंड में हम लोगों ने आगे तक जाकर देखा कि धुंध में वो चीज़ हमें नज़र ना आ रही हो, मगर वो वाज़े हम लोगों के सामने गायब हुए। हम लोग उस बरामदे से बाहर निकल के उन ट्रैक्स की तरफ आ गए। जब हम लोग उन बरामदों से निकल के बाहर आए, हम लोगों ने वाज़िया देखा कि बरामदे में कोई खड़ा है। उसका कद बहुत लंबा था, काले रंग के उसके कपड़े थे और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खौफनाक चमक रही थीं। कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या चीज़ है। मेरे दोस्त ने फ़ौरन चीख कर कहा कि बरामदे में कोई खड़ा है। हम लोग देख रहे थे, वो कभी बरामदे में इस तरफ जाए, कभी इस तरफ जाए, वाज़िया वो चीज़ थी। हम लोगों ने उस चीज़ को देखा। थोड़ी ही देर के बाद वो चीज़ फिर बरामदे से निकली और निकल के उन्हीं दरख्तों की तरफ भाग गई। अब हम लोगों को यकीन हो गया कि यहाँ पर वाकया कोई चीज़ है। हम दोस्तों ने यही डिसाइड किया कि हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं ये चीज़ हम लोगों को नुकसान ना दे दे, क्योंकि दूर दूर तक कोई और नहीं था हम लोगों के अलावा। सर्दियाँ भी थी, वीराने भी थे इस तरफ, क्योंकि आबादियाँ तो दूसरी तरफ थी, आगे जहाँ पर ट्रैक्स थे। बिल्कुल हम लोग वीराने में खड़े थे। अभी हम लोग ये बातें ही कर रहे थे, हम लोगों में से हमारे एक दोस्त को किसी ने आवाज़ दी। जिसने आवाज़ दी वो भी किसी मर्द की आवाज़ थी। उसका नाम हुसैन था। हुसैन को किसी ने आवाज़ दी और उसको वाज़िया अपनी तरफ बुलाया। वो बड़ा हैरान हुआ कि मुझे कौन आवाज़ें दे रहा है। हम लोगों ने उस आवाज़ जिस तरफ हम लोगों के घर थे उस तरफ देखना शुरू कर दिया कि इसके घर में से कोई ना इसको बुलाने आया हो। वहाँ पर भी कोई नहीं था। आवाज़ उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ हम लोग उस बरामदे में बैठे हुए थे। फिर ऐसा लगा कि बरामदे में आकर उधर ही जहाँ पर हम लोग बैठे थे वहाँ पर कोई आकर वाज़िया बैठा है। उसका चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। हम लोगों ने दोस्तों ने यही कहा कि अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ तो हम लोगों को ना अब डराने लग गई है। हम लोग उधर से वापस आने लगे हैं। अभी हम लोगों ने चल के अपनी आबादियों की तरफ जाना था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, डर भी लग रहा था। हम लोगों के उस तरफ जाते जाते आगे से बिल्कुल धुंध में कोई चलता हुआ आ रहा था ट्रैक्स के ऊपर ही। हम लोग फिर हैरान हो गए कि अब ये कौन आ रहा है इस तरफ से।
हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे थे, डरे भी हुए थे। कभी ऐसा लगे हम लोगों के पीछे कोई चल रहा है, पीछे पलट के देखते थे, कोई चीज़ नहीं होती थी, और वो जो आगे चीज़ चलती हुई आ रही थी वो चीज़ भी फिर गायब होगी। अब ये तो एक वाज़ह चीज़ कभी सामने आ रही थी, कभी जा रही थी। थोड़ा ही आगे हम लोग गए तो पीछे से फिर ऊंची ऊंची चीखों की आवाज़ें आने लगी और कहकों की आवाज़ें आने लगी। हम लोगों ने अपने घरों की तरफ दौड़ लगा दी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, सब अपने अपने घरों में चले गए। अगले दिन सुबह हम लोग फिर इकट्ठे हुए। उसी बरामदे में हम लोगों ने जाके देखा, वहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं थी। हम लोग बड़े परेशान कि पता नहीं क्या चीज़ थी क्या नहीं। जहन से उस चीज़ का खौफ ही नहीं जा रहा था। कुछ दिन के बाद हम लोगों के जो हमसाए थे, उनके कुछ मेहमान आने थे दूसरे शहर से। उनके वो मेहमान कहीं रात को लेट हो गए। वो जिस टाइम रात के 2-2:30 बजे वो कहीं पहुंचे हैं, तो उनके घर की तरफ आ रहे थे। वो जैसे ही वो लोग इस जगह पर उतरे हैं, आगे ट्रैक्स थे, ट्रैक्स को क्रॉस करके उन्होंने इनके घर आना था। वो कहते हैं कि जब हम लोग वहाँ से निकले हैं तो हम लोगों को रास्ते में एक आदमी मिला है, और उस आदमी ने हमें ये कहा है कि जिस घर में उन्होंने जाना था उस आदमी का नाम लेके कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो आगे बहुत ज़ख्मी हुआ पड़ा है, तो वो आप लोग आएँ ज़रा। जब हमने नाम सुना तो हमें तो पता चल गया कि ये जिनके घर हमने जाना है ये हमारे रिलेटिव ही हैं। हम लोग घबरा गए। वो 2 लड़के थे, वो उस आदमी के साथ चल पड़े। वो जो आदमी था वो उनके आगे आगे चलने लग गया। आगे आगे चल के वो उनको बिल्कुल स्टेशन के उन बरामदों की तरफ ले गया जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर जब वो लेकर गया, वो लोग बड़े हैरान कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी बात हुई होती, इस वीराने में ही हमें कहाँ ले आया है, यहाँ पर तो कोई हमें नज़र ही नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ होता, कोई किसी के साथ कोई हैपनिंग हुई होती तो और भी लोग इकट्ठे होते। कि पता नहीं हमें कहाँ लेकर जा रहा है। वो बार बार यही कहे जाए कि आप लोग आगे आ जाइए, पास ही है वो। थोड़ी ही देर आगे गए तो दरख्त के पास कोई लेटा हुआ था, और उसके ऊपर उन्होंने एक चादर दी हुई थी। कहता है ये ना आपका रिश्तेदार है, इसको देख लें। ये कहकर वो खुद एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। अंधेरा भी और खौफ भी आए। उन लोगों ने जब उसका चेहरा हटाकर देखा, वो तो इतनी खौफनाक कोई चीज़ थी, जैसे उन्होंने देखा कि ये तो कोई और चीज़ है। वो भागने लगे और वो जो दरख्त के नीचे चीज़ खड़ी थी वो गायब हो गई। जिसके ऊपर उन्होंने चादर दी हुई थी, वो इतना खौफनाक उसका हुलिया था, वो उनके पीछे लग गई। वो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले। उन चीज़ों ने उन पर हमला कर दिया, उनको बहुत मारा। एकदम से ऐसा लगा कि उनको किसी ने धिक्का दिया है। उन दोनों को बहुत ज़्यादा उन उन चीज़ों ने मारा और खौफनाक आवाज़ें निकाली। बिल्कुल जिस टाइम वो निढाल हो गए, वो चीज़ें गायब हो गई। उन बेचारों को कहीं इतना भी होश ना रहा कि वो उठ के जा सके। बिल्कुल उसी स्टेशन के बरामदे के आगे वो गिरे पड़े। जब सुबह हुई तो इलाके के लोग बाहर निकले कि वहाँ पर 2 आदमी गिरे पड़े हैं, पता नहीं कौन है कौन नहीं। हम लोगों के जो हमसाए थे, जिनके वो मेहमान थे, वो सारी रात अपने मेहमानों का इंतज़ार करते रहे। उन्होंने जब जाके देखा, वो उधर बेहोश हुए पड़े, उनके चेहरे ज़ख्मी हुए पड़े। बड़ी मुश्किल से उनको उठाया। बहुत ज़्यादा वो बेचारे तकलीफ़ में थे। उन्होंने फिर रात वाला सारा वाक़या बताया कि इस तरह हम लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। बहुत ज़्यादा बेचारे डर गए। काफ़ी अरसा वो लोग बीमार रहे, बुखार चढ़ गए उन्हें। उनमें से जो एक लड़का था, उसके तो ज़हन पर इतना शदीद असर हुआ था कि वो चीखें मारता था, ऊंचा ऊंचा रोता था लड़का हो के। उसको वो चीज़ें बार बार नज़र आती थी। फिर उन्होंने बहुत बड़े आमिल और जो इमाम हजरात होते हैं उनके पास जाके दम करवाए, तावीज़ वगैरह लिए, तब वो जाके कुछ ठीक हुए। उसके बाद कभी भी आधी रात के टाइम कोई भी ना उस स्टेशन की तरफ कभी गया है और ना ही उन ट्रैक्स की तरफ। ये कहानी आज से 5 साल पहले की है। अब वो जो ट्रैक्स वाला एरिया था और जो वो स्टेशन वाली जगह थी, वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। उस तरफ कभी कोई गया ही नहीं। वहाँ पर उन लोगों ने फिर बाद में हम लोगों इलाके वाले लोगों ने ही मिलकर बैरियर्स लगवा दिए थे। कभी भी ऐसी जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। हम दोस्तों ने भी बहुत बड़ी गलती की थी, जो हमें अल्लाह ने बचा लिया। अब हम कभी भी रात के टाइम उस तरफ नहीं जाते। कभी कभार अब भी खौफनाक आवाज़ें सुनने को मिलती हैं उस साइड से। ये मेरी खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका वलीद, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल लिसनर्स, मुझे कमेंट में मैंने एक स्टोरी ऐसी किसी की शेयर की थी, वो भी रेलवे स्टेशन की ही थी कोई। तो मुझे कमेंट में यही बात बताई थी किसी ने कि कराची में उनके घर भी
ریلوے ٹریکس کے پاس ہی تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ رات کے ٹائم وہاں پر بھی سفید لباس میں اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، جو چیزیں ویران، جو جگہیں ویران ہو جائیں، سوری، وہاں پر ایسی مخلوقات اپنا اثر ضرور کرتی ہیں، پھر وہ جگہ آسیب زدہ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ چیزیں اتنی خوفناک اور اتنی ورس ہو جاتی ہیں کہ انسانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی بھی رات کے ٹائم آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ کا فلاں رشتہ دار بلا رہا ہے، یا آپ ادھر آ کر ہماری بات سنیں، ہماری ہیلپ کریں، تو سوچ سمجھ کے جایا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو مدد کے لیے بلانے والا ہی آپ کا دشمن نکل سکتا ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلا کریں، باوضو ہو کے نکلا کریں کہ آپ ایسی خوفناک چیزوں کے حملوں سے بچ سکیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئی خوفناک کہانی میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔